हाँ जी, ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਜਾਂ 4 ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਜੋ ਫਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨਟੂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਦੇਖੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 35 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 8 ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਚੌਕਾ 32 ਆ ਜਾਊਗਾ। 8 ਇੰਟੂ 4 32, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, 3 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ 35 ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਤੇ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ, ਤੇ 8 ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਜੋ 3 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 35 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 35 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 35 ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮੇਰਾ 8 ਹੈ, ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, 1 ਲਿਖਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ 8 ਇੰਟੂ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ, 8 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 27 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 8 ਇੰਟੂ 2 16 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 19 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, 8 ਇੰਟੂ 3 24 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਓਸ਼ੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1 2 3 4 ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 27 19 11 ਤੇ 3।
देखो उरों ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ ਇਸਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 27 19 ਤੇ 11 ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ 3 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 11 19 ਤੇ 27 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ 8 ਤਾਂ 11 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ 19 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 27 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਫ n ਇਜ਼ ए ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 7, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ n ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 7 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 7k ਇਕੁਅਲ ਟੂ n। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7k, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ k ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਵੈਨ n ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, 7k + 3 ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ n, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 3 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ k ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲਗਾ ਜਾਊਗਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ n ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 8, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 0 ਆ ਸਕਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ n 8 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ, ਜਾਂ n 16 ਹੋਊਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆ ਸਕਦਾ, 2 3 4 5 6 7 ਤੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 8 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ 8 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 8 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਰ ਐਡੀਟਿਵ, ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, what is remainder obtained when 40 is divided by 7। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ 40 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 7 5 ਦਾ 35, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 5, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਅੱਗੇ देखो क्वेश्चन नंबर 2, what is remainder obtained when 10 into 20 is divided by 7। देखो जी अपन ने रिमाइंडर पता करना है जो आप 10 into 20 ਨੂੰ 7 ਤੇ डिवाइड करा। देखो जी किमें कर सकते हैं, या तो आप वैसे ही कर लिए कि ये नंबर कितना बन गया 200 बन गया, आप 7 ਤੇ डिवाइड कर सकते हैं। कितना आ गया जी अपने को रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है जी, रिमाइंडर कितना ऑब्टेन्ड हो गया 4। बट आप एवं क्यों करिए, मान लो ये तो स्मॉल नंबर ने, जो नंबर बड़े आ गए तो आप एवं नहीं कर सकते। तो देखो आप इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए की करना है, पहला आप 10 ਨੂੰ 7 ਤੇ ही डिवाइड कर देंगे।
तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा रिमाइंडर। 20 ਨੂੰ 7 ਦੇ डिवाइड करांगे रिमाइंडर 6 आ जाऊगा। ਆਪਾਂ पढ़िया सी कि रिमाइंडर ਨੂੰ ਆਪਾਂ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਰੋਂ कितना आ जाऊगा 18 आ जाऊगा। ਤਾਂ 18 ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता रिमाइंडर हो नहीं सकता है क्योंकि रिमाइंडर की है अपने को 7 तो की होना चाहिए लैस, डिवाइजर तो हमेशा की होना चाहिए छोटा। तो आप इन्हू दोबारा डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 4। ये होंगे अपने को एक्चुअल रिमाइंडर। अपने की करना सिंपल, जो आप डिवाइड करांगे तो उरे रिमाइंडर 3 आ जाऊगा, उरे रिमाइंडर 6 आ जाऊगा, उरे कितना आ जाऊगा 18। तो फिर आप 18 ਨੂੰ फर्दर डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना आ जाऊगा 11 सॉरी 4। ठीक है जी। तो 4 अपने को की है एक्चुअल रिमाइंडर। नैक्सट आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 ਤੇ 4। दो क्वेश्चन है जी अपने को, क्वेश्चन नंबर 3 ਤੇ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 की है व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 1421 into 1423 into 1425 is divided by 12। देखो हम की कह रहे हैं आप, जो कहना आप 1421 गुना 1423 गुना 1425 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे किते ऊपर 12 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ रिमाइंडर कितना होगा, ये चीज़ अपने पता करनी है। देखो सिंपल जी गल है, पहला आप एक चीज़ नाल डिवाइड कर लेंगे, 1421 ना करांगे आप डिवाइड, तो कितना रिमाइंडर आ जाऊगा 12 आ गया उरे 22 101 12 8 96, कितना रिमाइंडर आ गया 5। तो उरे रिमाइंडर कितना आ जाऊगा अपने को 5 आ जाऊगा। इतने रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 7 आ जाऊगा, क्योंकि ए इस तो 2 ਵੱਧ है। उरे रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 9 आ जाऊगा। देखो इस चीज़ में ध्यान, उरे रिमाइंडर 5 आया सीगा, 1421 है, जो 23 आ गया तो 7 आ गया क्योंकि 2 बढ़ गया, 1425 हो गया था कितना बढ़ गया 2 होर बढ़ गया, रिमाइंडर 9 आ गया। हूँ जो आप इन्होंने आपस डिवाइड कर दिए 5 7 35 35 आ गया। जो 35 ਨੂੰ 12 से डिवाइड करांगे आप तो कितना रिमाइंडर आ जाऊगा, ये आ जाऊगा 12 दूना 24 11 रिमाइंडर आ जाऊगा। 11 फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाऊगा 99 ਨੂੰ आप 12 से डिवाइड करांगे तो फाइनल रिमाइंडर आ जाऊगा अपने को 12 8 96, रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 3। ठीक है जी। तो इस तरीके नाल आप रिमाइंडर ਨੂੰ मैथमैटिकल ऑपरेशन नाल आप ईजी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना अपने को 3। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 raised to power 100 4 raised to power 100 डिवाइड बाय 7। इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ सॉल्व करना है। देखो जी इस चीज़ ਨੂੰ मैं की लिख सकता, देखो मैं एक यह नंबर लभूंगा, देखो जी मैं 4 का स्क्वायर करना कितना आ जाऊगा 16 आ जाऊगा। जो मैं 4 into 4 करदा तो कितना आ जाऊगा 64 आ जाऊगा, मतलब कि 4 की क्यूब कितना आ जाऊगा 64 आ जाऊगा। जे मैं उरे इस चीज़ में एवं लिख ला 4 की क्यूब यदी पावर 33 99 पावर होगी जी अपने को, इंटू कितना आ जाऊगा 4 की पावर 1। जे मैं इस चीज़ में 7 से डिवाइड करता तो भी रिमाइंडर सेम आऊगा, क्योंकि ये कितनी है 4 की पावर 99 है, और 4 की पावर कितनी है 1, कितनी होगी 100 होगी। हुण ये चीज़ मेरे को क्वेश्चन की बन गया एक्चुअल ये बन गया 64 की पावर 33 इंटू 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 7। हुण देखो जी अपने की करना है सॉल्व करने के लिए। हुण 64 है, जे मैं 64 ਨੂੰ 7 से डिवाइड करदा तो मेरे को रिमाइंडर कितना आऊगा 1 आऊगा। तो हुण उरे की किया होया इस क्वेश्चन के विच इन्हां ने 64 की पावर 33 है कि मैं 64 ਨੂੰ मैं कितनी बार लिखूंगा, जिन्नी दी पावर है 33 टाइम्स लिखूंगा, इंटू कितना है जी 4 है, डिवाइड बाय कितना 7। तो जो मैं 7 ਨੂੰ 64 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 आऊगा, पूरे भी रिमाइंडर 1 आऊगा। तो जो 1 है वो 33 टाइम्स की हो जाऊगा मल्टीप्लाई हो जाऊगा। इट मीनस उरे कितना आ जाऊगा 1 की पावर 33, इतों रिमाइंडर बचूगा इंटू 4 की पावर 1। तो 1 की पावर जो मर्जी हो कितनी होंगी है 1 होंगी है। तो इत्थे फाइनल की आ जाऊगा मेरे को इत्थे बन जाऊगा 1 की पावर 1 डिवाइड बाय 7, उरे कितना आ जाऊगा 1 4 बाय 7 आ जाऊगा। जो 4 ਨੂੰ 7 से डिवाइड करने का रिमाइंडर कितना आऊगा 4 आऊगा। तो 4 ही है अपना आंसर।
ठीक है जी। तो अपने को 4 आंसर आ जाऊगा, इस क्वेश्चन आंसर है। ठीक है जी, क्योंकि वो 64 बन गया जो मैं 64 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 7 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਇਆ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 33 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਹੈ। देखो उरे कितना बनता 64 ਦੀ पावर 33 इंटू 4 बनता। तो मैं की करूँगा जिन्ने तो मेरा कैंसल हो जाऊगा, मैं जो मैं कैंसल किया 7 ਨੂੰ 64 ਤੇ कितना आ जाऊगा, रिमाइंडर 1 आ जाऊगा। तो आप 1 ਦੀ पावर 33 आप लिख सकते इंटू 4, इनू आप 7 ਦੀ डिवाइड करना, ये आ जाऊगा 4/7। तो रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। 4 अपना की है आंसर। मतलब कि जो आप बिच वाली टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइजर ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचूगा एंड 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ भी पावर लिख सकते हैं। जिवें मैं 4 ਨੂੰ 7 डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो आप 1 की पावर कितनी करती 33 करती। ठीक है जी, 1 की पावर कितनी करती है, 33 इंटू 4 अपन लिख लिया, तो जो रिमाइंडर आया आंसर है। अगे करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। आ जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 38 प्लस 71 प्लस 85 इज डिवाइडेड बाय 16। 38 प्लस 71 प्लस 85 डिवाइड बाय 16 करना है ਆਪਾਂ। तो देखो जी बिल्कुल आसान है। 6 ਤੇ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे 38 ਨੂੰ, ਤਾਂ रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। उरे रिमाइंडर कितना आ जाऊगा, उरे आ जाऊगा 12 5 7 6 11 66, रिमाइंडर 5 आ जाऊगा। इनू करांगे आप डिवाइड, रिमाइंडर 1 आ जाऊगा। ठीक है जी। तो बिच की है साइन का प्लस का, आप इन्होंने ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया, इन्होंने ऐड करके 8 आ गया। बट 8 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आप 8 ਨੂੰ 6 से दोबारा डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाऊगा 2 आंसर आ जाऊगा। तो 2 अपना की है रिमाइंडर है। इस क्वेश्चन को जो आप नैगेटिव रिमाइंडर ना करते हैं तो बहुत वधिया होना सीगा ये। चलो कोई गल नहीं जी, आप अगे देखते हैं। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी अपने को, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन, जो ये नंबर गिवन एक्सप्रैशन गिवन है, इज डिवाइडेड बाय 20। तो 1661 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਦੇ डिवाइड करना है। 1551 1441 1331 प्लस 1221। इसमें आप डिवाइड करना है 20 से। देखो जो 20 से डिवाइड करना था, देखो एक की लिखा हुआ है अपने को 1661 लिखा है, इसका मतलब की होगा 1600 प्लस 61। तो यह तो पूरा डिवाइड होगा मेरा 20 से, मैं सिर्फ की चेक करना सीगा 61। तो जो मैं 61 ਨੂੰ 20 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा रिमाइंडर। इसनों मैं करूँगा डिवाइड, तो 51 ਨੂੰ कर दूँगा सिर्फ मैं, क्योंकि 1500 प्लस 51 बनता है, 1500 प्लस 51 बनता है। तो 51 ਨੂੰ मैं जो 20 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 11। पूरे रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा, पूरे भी 11 आ जाऊगा, पूरे रिमाइंडर 1 आ जाऊगा। हूँ जो मैं इन्होंने ऐड करदा 12 प्लस 1 13 13 14 24 25, तो 25 आ गया मेरे को इन्होंने सम सारे का। तो मैं दोबारा 20 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 5 आ जाऊगा। ठीक है जी, तो रिमाइंडर कितना आ गया अपने क्वेश्चन आंसर 5। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 है अपने को, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 10 प्लस 10 द स्क्वायर प्लस 10 द क्यूब प्लस 10 द पावर 4 प्लस 10 द पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 6। 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 द पावर 4 10 द पावर 5, जे आप 6 से डिवाइड करांगे तो की आऊगा रिमाइंडर। देखो जी उरे रिमाइंडर कितना आऊगा, सिंपल जी गल है, 4 रिमाइंडर आ जाऊगा। उरे कितना रिमाइंडर आ जाऊगा, 10 का स्क्वायर होंगे 100, तो 6 गुणा 16 कितना होंगे 96, तो रिमाइंडर उरे भी 4 आ गया। जो हम पिछे एक 0 होर ऐड होगी, मतलब कि देखो 0 ऐड होने का मतलब की होंगे, देखो पहला आप डिवाइड किया है 100, 100 से रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। जे आप अगे 1000 से डिवाइड करना, जो आप 10 मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब आप 4 भी तो 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आप 10 नाल करते हैं उदों भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाऊगा 16, तो आप दोबारा करा तो भी रिमाइंडर कितना आऊगा 4 आऊगा। ठीक है जी, पूरे भी रिमाइंडर 4 आऊगा।
सिमिलरली उरे रिमाइंडर 4, उरे रिमाइंडर 4। ठीक है जी, क्योंकि 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4 × 4 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 16। 16 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 20। 20 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, r = 2। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। हाँ जी, क्वेश्चन तो पहला अपने को की है कॉन्सैप्ट ऑफ नैगेटिव रिमाइंडर। ये चीज़ आप सीखनी है, क्योंकि देखो वैसे रिमाइंडर नैगेटिव नहीं हो सकता, बट जो रिमाइंडर नैगेटिव आ जाए आप उसनों पॉजिटिव करना है, वो डिवाइजर ऐड कर देंगे, तो वो जो डिवाइजर ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाएगा। उन्नी बार डिवाइजर ऐड करना है जिन्नी बार की है रिमाइंडर पॉजिटिव नहीं आता, क्योंकि जो एक कॉन्सैप्ट है ये बहुत क्वेश्चन अपने ईजी सॉल्व होंगे। तो नैगेटिव रिमाइंडर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ यूज़ करना है। देखो जी किमें, जिमें एक एग्जाम्पल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आप 8 करना सीगा। क्वेश्चन नंबर 7 की है, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 4। तो कहना रिमाइंडर की होगा, अपने तो आ चीज़ पूछ रहा है। हुण देखो जिमें 7 ਨੂੰ देखो उरे हुण ध्यान नाल समझो चीज़, उरे 7 है बाहर 4 है, 4 जिमें 4 ਨੂੰ क्वेश्चन 2 ले ला तो उरे 8 आ जाऊगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है जी, रिमाइंडर -1 आ गया। तो मतलब की है जे मैं आप ये चीज़ कर चुके, जे आप पावर की कुछ किसी नंबर की पावर है, जे आप नंबर जे आप डिवाइजर उस नंबर नाल डिवाइड कर दिए, 7 ਨੂੰ 4 से डिवाइड कर दिए, तो जो रिमाइंडर कितना आया -1 आया, वही आप पावर की लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। डिवाइड बाय की करना आप 4, तो 1 ਨੂੰ जिन्नी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो की आऊगा 1 आऊगा, पर एंड पर नैगेटिव साइन जरूर आऊगा। हुण जे आप -1 ਨੂੰ 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा -1 आऊगा, बट रिमाइंडर -1 हो नहीं सकता, तो ये आप डिवाइजर ऐड कर देंगे 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। तो 3 की अपने का सही आंसर है। देखो जी किमें, हुण देखो जे आप इस क्वेश्चन का एक्चुअल रिमाइंडर निकालना होंगे 7 ਨੂੰ जे आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आऊगा, अपने को आ जाऊगा रिमाइंडर 3 आना चाहिए सीगा। बट जो अपने एक स्टैप अगे चले गए, आप नैगेटिव रिमाइंडर -1 आ गया, तो जे कि तुसीं ध्यान नाल देखो कि जे आप ये डिवाइजर ऐड कर दिए तो आप दोबारा आप 3 ते पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन करना की है, जे आप नैगेटिव रिमाइंडर भी निकाल लें तो जो आंसर आऊगा वो आप डिवाइजर ऐड कर देंगे, आप दोबारा पॉजिटिव रिमाइंडर जो कि एक्चुअल रिमाइंडर से आप पहुँच जाएंगे। तो उन्नी बार आपने ऐड करी जाना बार बार। ठीक है जी, इस तो अगे देखते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन है व्हाट इज रिमाइंडर when 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 is divided by 7। ਤਾਂ 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾइंडर ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾइंडर ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ कुछ क्वेश्चन ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾइंडर ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, 11 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 11 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾइंडर ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ 7 × 2 14 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 11 ਚੋਂ 14 ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ -3 ਆਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8, ਬਾय 7 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾइंडर सेम आऊगा, इत्थों भी रिमाइंडर सेम आऊगा। ठीक है जी, तो रिमाइंडर दोनों पासों सेम आऊगा। तो मैनू ये 3 की पावर 8 सॉल्व करनी ईजी है या 4 की पावर 8 मैनू सॉल्व करनी ईजी है 3 की पावर 8, क्योंकि जो नैगेटिव साइन तो पॉजिटिव हो जाऊगी पावर 8 है। तो हम देखो मैं इनू जे मैं देखा 3 × 3 इन्हों का 9 9 × 27 ਤੇ 81, तो यह 81 × 81 है। ठीक है जी, तो हम देखो 81 गुणा 81 है, जे मैं 7 ਨੂੰ 81 ਤੇ डिवाइड करदा तो मेरे को रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 4 आ जाऊगा, पूरे भी रिमाइंडर 4 आ जाऊगा। तो हम रिमाइंडर कितना हो गया 16 हो गया, बाय फिर 7 कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना अपने को 2। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 923 888 की पावर कितनी है 888 प्लस 235 की पावर 222 इज डिवाइडेड बाय 4 जो कहना 923 की पावर 888 प्लस 235 की पावर 222 ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਵੀ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਾਂ 516 ये नंबर मेरा 4 ਤੇ डिविजिबल है हाँ जी है जी क्योंकि लास्ट ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 डिजिट ने 4 ਤੇ डिविजिबल ने ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 517 ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ डिविजिबल ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 17 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 23 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ -1 ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 × 6 कितना होगा 24 4 6 24 23 24 माइनस कराएंगे -1 आ जाऊगा तो पावर कितनी है जी 888 सिमिलरली उरे 35 लिखा है जो उरे आप 35 ਨੂੰ 4 ਤੇ डिवाइड करना है तो रिमाइंडर पता करना है आपने 4 × 9 कितना होता 36 तो -1 रिमाइंडर उरे भी आ गया 222 आ गया तो हुण नैगेटिव टर्म की पावर जे ईवन नंबर है तो पावर तो नैगेटिव साइन खत्म हो जाऊगा तो उरे कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा उरे 1 आ जाऊगा तो हुण जे आप 2 ਨੂੰ 4 ਤੇ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आऊगा अपने को 2 आ जाऊगा तो 2 की है अपने को आंसर है ठीक है जी इस तरीके आप क्वेश्चन बहुत ईजी कर सकते हैं नैगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सैप्ट अगे देखते हैं जी ये क्वेश्चन नंबर 10 सी अगे आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 9415 इज डिवाइडेड बाय 80 देखो जी की है क्वेश्चन दे विच 3 की पावर 9415 जे आप 80 से डिवाइड करते हैं तो अपने को रिमाइंडर कितना वो चीज़ आप फाइंड करनी है देखो जी अपन पता है कि जो 3 की पावर 4 है वो कितनी होंगी है मेरे कुछ भी लिख रहे हैं 9415 बाय 4 लिखता ठीक है जी या फिर मैं डिवाइड बाय 4 कर देना ईजली ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 80 ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 81 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9415 ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖੂੰਗਾ 9412 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ by 4 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ मैं लिखा 3 की पावर कितनी है जी 9412 इंटू 3 की पावर 3 जो 9412 है जे मैं 4 से डिवाइड करदा ताकि मैं एवं लिख सकता 9412/4 ठीक है जी देखो मैंने एवं क्यों लिखा मैंने इन्हू पूरा सॉल्व करने की लोड़ नहीं है क्योंकि मैंने पता कि ये उरे मेरा रिमाइंडर बचना नहीं तो कोई नंबर आऊगा जो मैं 9412 ਨੂੰ 4 ਤੇ डिवाइड करूँगा तो कोई नंबर आऊगा लेट से n कोई नंबर आ गया ठीक है जी तो हुण जी 3 की पावर 4 कितनी है 81 है इसकी पावर कोई नंबर n है उरे कितना आ गया 27 नीचे आ गया 80 हुण देखो जो मैं 81 ਨੂੰ 80 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा 1 की पावर कितनी है n जो मर्जी हो 1 ही होगी ठीक है जी तो इंटू मैं करना है 27 तो 1 × 27 आ जाऊगा 27/80 तो हम जो मैं 80 से डिवाइड करूँगा 27 ਨੂੰ तो रिमाइंडर कितना आऊगा मेरे को 27 आ जाऊगा तो 27 की है सही आंसर है और एक चीज़ ध्यान रखियो 80 कैंसल नहीं होता है सिर्फ आप डिवाइड करके आप रिमाइंडर पता करेगा ठीक है जी 81 ਨੂੰ ਆਪਾਂ कैंसल नहीं किया 80 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया तो 1 ਨੂੰ 27 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 27 आ गया 27 में 80 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 27 आ जाएगा नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12
व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 888 ਦੀ ਪਾਵਰ 222 प्लस 222 ਦੀ ਪਾਵਰ 888 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 222। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 888 ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਤੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 221 ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 220 ਇੰਟੂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, प्लस 2 ਦੀ पावर मैं लिख लेना 888 है। ये चीज़ देखो मैं क्यों लिखी है, क्योंकि मैनू है भी मेरी पावर 4 से जो मेरी डिवाइड होंगी हो जाए तो मेरा 81 बन जाऊगा। 3 के 9 के 27 तो 81 होंगे 3 की पावर 4। तो जो मेरी नंबर 4 से डिवाइड होगा तो मेरे को 81 है, जो 81 को 5 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 1 आ जाऊगा। देखो जी किमें, जे हुण मैं इसनूं पहला लिख लेना, हुण मैं चैक करना भी 2 का, जो मैं 2 की पावर 4 करदा, ठीक है जी, तो उपर लिखना 2 की पावर 222 कर देना, 222 कर देना, तो इत्थे रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। देखो हुण देखो आ चीज़ बन गई अपने कुल मिला के। हुण देखो जी उरे ध्यान नाल, जे इसनूं मैं लिखा 3 की पावर 4, ये आ जाऊ मेरे को 54, 4 से डिवाइड करूँगा 4 5 20 55 आ जाऊगा, इंटू कितना आ गया 9 आ गया, प्लस 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, इसकी पावर कितनी है 222, इनू डिवाइड करना मैं 5 से, तो हुण रिमाइंडर कितना आऊगा। देखो उरे का मेरे कितना बन जाऊगा 81 बन जाऊ। आ चीज़ कितनी है अपने को 81, तो जब मैं 81 नू 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को कितना आ जाऊगा रिमाइंडर 1 आऊगा, तो 1 की पावर कितनी बच गई 55, ठीक है जी, 1 की पावर कितनी बच गई 55, प्लस उरे कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा, 1 की पावर कितनी आ गई 222, डिवाइड बाय की करूँगा मैं 5, इतों की बन जू मेरे को 1 + 1 2 बाय 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे को 2 आ गया। ठीक है जी, हजे आप फिलहाल ये क्वेश्चन इस तरीके नाल कर रहे हैं, बट जदों आप जिहड़ियां थ्योरम्स ने रिमाइंडर थ्योरम वो आप सीख लांगे तो अपने क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, हवा के क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है जी, तो वो भी आप करांगे। इस तो अगे देखते हैं जी आप ऐ देखियो भी हवा च क्वेश्चन होंगे जी सारे, जो ये थ्योरम्स ने एल एफ टी थ्योरम है एक हैगी अपने को बाइनोमियल, ठीक है जी, ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ 2-3 ਥਿਓਰਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 11, ਇਹ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 की है अपने को 17 की पावर 8 प्लस 21 की पावर 8 डिवाइड बाय 19। देखो जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो आप नैगेटिव रिमाइंडर ना करांगे, जो आप 17 को 19 से डिवाइड करांगे की आप बोल सकते कि रिमाइंडर -2 होगा, इसकी पावर 8 आ गई। जे आप 21 को 19 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा, पावर कितनी आ जाऊगी 8 आ जाऊगी, डिवाइड बाय 90। ठीक है जी, हुण 2 की पावर 8 है अपने को, ये भी की बन जूगी पावर नंबर किदा बन जूगा प्लस का बन जूगा, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 9, ये बन जूगा 2 × 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 2 की पावर 9 बाय 9 बन जूगा। इतों पर रिमाइंडर फाइंड करना है, तो 2 की पावर जो 9 होंगी है ये होंगी अपने को 2 की पावर 5 होंगी 32 64 128 ये पावर 6 पावर 7 पावर 8 256 512। तो 512 को आप 9 से डिवाइड करांगे। देखो यदा जो नंबरस ने जो आप 9 से डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 8 आ जाऊगा,
क्योंकि 512 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 8 ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦੀ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਕਰਾਂਗੇ हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 14 दी पावर 4 प्लस 23 दी पावर 4 डिवाइड बाय 17 देखो जी उरे जे अपन नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सैप्ट यूज करिए तो कितना आ जाऊगा 3 दी पावर 4 आ जाऊगा उरे आ जाऊगा अपने कोले 6 दी पावर 4 आ जाऊगा 17 दे आप डिवाइड करना तो कितनी होंगी है जी 81 प्लस 36 गुना 36 ਹੁਣ देखो जो आप 17 ਦੇ डिवाइड करते हैं 17 चौकी 68 कितना आ गया अपने को 13 आ गया 17 में 34 उरे 2 आ गया गुना 2 आ गया तो 13 प्लस 4 कितना हो गया 17 हो गया 17 ना 17 कैंसिल हो जाऊगा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया मतलब कि आप मैथमैटिकली टर्म्स ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 की है व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 22 रेज टू पावर 10 प्लस 26 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 24 देखो जी फिर अपन नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सैप्ट यूज करेंगे -2 आऊगा इंटू 10 आऊगा प्लस -2 आऊगा सॉरी +2 आऊगा पावर 10 डिवाइड बाय 24 तो ये बन जाऊगा 2 दी पावर 11 बाय 24 तो ये चीज़ बन जाऊगी अपने को 2048 डिवाइड बाय 24 या फिर आप सिंपल भी कर सकते थे कैलकुलेट 1024 प्लस 1024 डिवाइड बाय 24 तो जो आप 1024 में डिवाइड करांगे 24 चौक 96 कितना बच गया 64 2 48 ये बन जाऊगा अपने को 16 तो उरे 16 आ जाऊगा उरे 16 आ जाऊगा 16 प्लस 16 कितने हो गए 32 हो गए जो 32 में दोबारा 24 से आप डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 8 आ जाऊगा 8 अपना सही आंसर है जी बाकी सारे ऑप्शंस गलत ने PDF के सारे ऑप्शंस ठीक होकर मिलेंगे हाँ जी इस तो अगे देखो जो नैक्सट कॉन्सैप्ट है देखो क्लास थोड़ी जी लंबी हो क्योंकि ये बेसिक पोर्शन ही बहुत ज़्यादा है रिमाइंडर का बिना बेसिक तो जो एडवांस लैवल आप उत्थे नहीं पहुँच सकते इस करके अपन ये सारा कुछ करना पऊगा जी इनू चाहे तुम बोरिंग समझ के करो या जिवें मर्जी करो ये करना पऊगा नैक्सट देखो नैक्सट जो अपने को है जी नैक्सट कॉन्सैप्ट है क्वेश्चन किवें आएंगे देखो की होगा क्वेश्चन दे विच वैन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर डी दैन रिमाइंडर इज आर एक नंबर होगा जी n उसनों जो आप डिवाइजर डी ते डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर आर अपन मिल गया अपन क्वेश्चन कोई इस तरह का गिवन होगा आफ्टर दैट देयर इज सम चेंज इन नंबर एंड डिवाइजर दैन फाइंड रिमाइंडर फिर क्वेश्चन की होगा जी अपने को कुछ जो नंबर होगा वो कहेंगे जो नंबर इस तरीके चेंज हो जाए तो जो डिवाइजर भी चेंज हो जाए तो अपने को जो रिमाइंडर है वो कितना होगा या नंबर सेम रहे डिवाइजर चेंज हो जाए तो रिमाइंडर कितना होगा इस तरह के क्वेश्चन ने जी ये 4 टाइप्स ने जी ये मेनली फर्स्ट टाइप है जी वैन न्यू डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ ओल्ड डिवाइजर जो डिवाइजर चेंज होगा जो नवा डिवाइजर होगा ओल्ड पिछले डिवाइजर का की होगा फैक्टर होगा एक सैकेंड टाइप है वैन सम मैथमैटिकल ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन द गिवन कंडीशन मतलब कि जो अपन डिवाइजर गिवन होगा या नंबर गिवन होगा वो उपर कुछ मैथमैटिकल ऑपरेशन लगूगा ठीक है जी तो उस तो बाद अपन कुछ क्वेश्चन गिवन होगा नैक्सट थर्ड टाइप है वैन 2 कंडीशन इज गिवन जो 2 कंडीशन गिवन होनी क्वेश्चन के थर्ड कंडीशन पूछा जाऊगा आफ्टर सम मैथमैटिकल ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन गिवन 2 कंडीशन
दोनों कंडीशन के उपर मैथमैटिकल ऑपरेशन लगूगा, फिर अपने तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाऊगा। तो टाइप 4 है वैन न्यू डिवाइजर इज मल्टीपल ऑफ ओल्ड डिवाइजर, जो जो नवा डिवाइजर है वो पुराने डिवाइजर का की होगा, मल्टीपल होगा। तो ये 4 टाइप्स ने, इन्होंने चारे टाइप्स के बेस पर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के। हजे तक बेसिक आ रहे हैं, बट आप मीडियम लैवल तक क्वेश्चन करा, मीडियम की आप कुछ एडवांस लैवल तक ही क्वेश्चन करा। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं टाइप 1 व्हेन न्यू डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ ओल्ड डिवाइजर। तो क्वेश्चन देखो जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 68। देखो जी क्वेश्चन की है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टन नंबर बाय 342, कहता जे आप किसी नंबर को 342 से डिवाइड कर दिए वी गेट 47 एज रिमाइंडर। एक नंबर है जी अपने को, लेट्स से n ते डिवाइजर है अपने को 342 ते जो अपन रिमाइंडर मिलता है वो कितना 47। इफ द सेम नंबर, यही नंबर रहूगा, नंबर चेंज नहीं कर रहा, इज डिवाइडेड बाय 18, जो आप नंबर को 18 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर की आऊगा, ये चीज़ आपने पता करनी है। तो देखो जी ये एक सम बिल्कुल एग्जाम्पल मैं दसदा, मान लो एक नंबर है अपने को 42 है, बहुत आसान है जी क्वेश्चन। नंबर सपोज कर लिया आप 42 है, एक आप इस क्वेश्चन की गल नहीं कर रहे, एक आप सैपरेट एग्जाम्पल लै रहे हैं। जे मैं इस क्वेश्चन, जे मैं इस नंबर को मान लो मैं 10 से डिवाइड करदा, मैं 10 से डिवाइड करता, तो हम देखो इस तो बाद तो मेरे को रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो हुण कि जे मैं यही नंबर को 5 से डिवाइड करदा तो मेरे को रिमाइंडर कितना आऊगा 0 आ जाऊगा, सॉरी रिमाइंडर फिर 2 आऊगा, मतलब कि सेम रिमाइंडर आऊगा। ठीक है जी, तो इस तरीके आप देखना है। तो हम देखो जो भी अपने को फैक्टर, हम जो न्यू नंबर है, जो न्यू डिवाइजर है वो पुराने डिवाइजर का की है फैक्टर है। तो अपने को की है जो डिवाइजर है वो की आ रहा है अपने को यदा फैक्टर है ओल्ड डिवाइजर का। तो आप रिमाइंडर को सेम लिख लेंगे एक बार तो, बट हम जे तो रिमाइंडर जो आ गया वो इस तो छोटा होया। ठीक है जी, मतलब कि जो रिमाइंडर आऊगा जे तो ये डिवाइजर तो छोटा होगा, मतलब कि न्यू डिवाइजर तो अपना वही की रह जाऊगा, आंसर रह जाऊगा। बट जो बड़ा होया मान लो ये 7 आ जाता, या आप क्वेश्चन इस तरीके चेंज कर दिए, जो अपने को मान लो आप इस नंबर नो नंबर 47 है मान लो सपोज कर, अपन 10 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। जे 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कि आना चाहिए 7 ही आप लिखा एक बार तो, बट जे रिमाइंडर 7 आ गया अपन दोबारा 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाऊगा। ठीक है जी, आप सेम रिमाइंडर अपन नीचे भी लैके आवेंगे, बट हूँ रिमाइंडर जो 7 है वो तो इस तो 5 तो बड़ा हो गया ना, बट रिमाइंडर तो बड़ा हो नहीं सकता डिवाइजर तो आप 7 को दोबारा डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा। तो इस तरीके आपने क्वेश्चन करने ने जी ये। हूँ जिमें क्वेश्चन नंबर अपन जो गिवन है 16 है, वो एक नंबर है, तो जे आप नंबर को 342 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 47 आ रहा, जे आप रिमाइंडर को 18 से, जे आप नंबर को 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आऊगा। आप सपोज कर लिया कि रिमाइंडर 47 ही आऊगा, बट 47 का डिवाइजर तो बड़ा हो गया, तो आप दोबारा डिवाइड कर देंगे 18 से, तो कितना आंसर आ जाऊगा 36, रिमाइंडर आ गया 11 आंसर आ गया। ठीक है जी, कितना रिमाइंडर आ गया 11, तो 11 अपना की है आंसर, सही आंसर है। ठीक है जी, इस तरीके आप क्वेश्चन करना है। देखो फैक्टर जो सैकेंड डिवाइजर है ये फस्ट का की है फैक्टर है, तो आप सेम रिमाइंडर लिखांगे, उन्होंने आप 18 से डिवाइड करांगे दोबारा डिवाइजर ना, जो इस तो बड़ा है तो जो रिमाइंडर आऊगा आंसर आ जाएगा। अगे लिखांगे जी आप क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 अपने को, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टन नंबर बाय 899 वी गेट 63 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। हुण देखो मैंने एक चीज़ दसो भी 63 है उरे 29 किमें करांगे जी आप, सॉरी 29 नहीं, क्वेश्चन की है एक नंबर है उसनों आप 899 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 63 आ रहा है। जे आप सेम नंबर में 29 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर कितना होगा। चेक करो जी कि 29 इज द मल्टी इसका फैक्टर है 899 का, तो आप चेक कर लेने 29 30 87 2 9, हाँ जी बिल्कुल है जी। ठीक है, तो जो 29 है वो
899 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 63 ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਬਟ 63 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 29 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 29 30 57 6 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 29 दूना 58 सॉरी रिमाइंडर 5 आऊगा ठीक है जी तो आंसर कितना आ गया 5 ऑप्शन ए बिल्कुल आसान चीज़ है आप इतों ही चेक कर लेना है पहला तो उधर चेक करा कि 29 इज द मल्टीपल है सॉरी ये फैक्टर है 899 का जे है तो आप 63 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 29 ਦੇ डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाए अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है ए नंबर विच वैन डिवाइड बाय 1003 रिमाइंडर कितना आ रहा है 209 इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 59 तो रिमाइंडर कितना होगा तो नवा रिमाइंडर पूछे आपने तो चेक करांगे जिसका फैक्टर है या नहीं है तो 59 413 963 350 बिल्कुल है जिसका फैक्टर है तो ये कैंसल हो रहा है जी 59 ते तो आप चेक करा कि जो आप 209 ਨੂੰ 59 ਦੇ डिवाइड करांगे तो कितना आ जाऊगा तो जो आप 3 ਤੇ कैंसल करांगे जी आप 177 आ गया तो 23 ਤੇ 9 कितना आ गया 23 ਤੇ 9 31 59 इंटू 3 होंगे 9 30 27 150 127 23 प्लस 9 32 आ रहा तो 32 की बच गया अपने को रिमाइंडर बच गया ऑप्शन बी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 90 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19 की है व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय डिवाइजर डी इट लीव्स रिमाइंडर 10 एंड एन स्क्वायर इज डिवाइड बाय डी लीव्स रिमाइंडर 4 हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ डी आर पॉसिबल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी देखो किमें करांगे आप इस चीज़ when a number is divided by divisor d it leaves a remainder 10 ठीक है जी एक नंबर सी n ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ n ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਵੀ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ d ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो रहे हैं ध्यान देखो ठीक है जी जो नंबर के चेंज होगा तो आपने सेम चेंज कि करना है आप रिमाइंडर के चेंज करना है तो जे उरे रिमाइंडर 10 आ रहा सीगा देखो की है मैं तुहानू दोबारा दसदा एक एग्जाम्पल देखो की चीज़ है मान लो एक नंबर है जी मेरे को 10 है मेरे को एक नंबर है 10 तो मेरे को डिवाइजर है 7 तो मैंने पता जी मेरे को जो रिमाइंडर कितना आऊगा 3 आ जाऊगा रिमाइंडर जे मैं n का स्क्वायर करता 100 करता डिवाइजर मैं सेम रखा तो हुण मेरे को रिमाइंडर कितना आऊगा तो देखो मैं सिंपल की करूँगा मैं 3 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाऊगा 9 क्योंकि मेरा उरे भी स्क्वायर होएगा ठीक है जी उरे भी 10 का स्क्वायर होया तो मैं उरे में 3 का स्क्वायर कर दूँगा 9 आ गया तो 9 मेरे को की बन जाऊगा रिमाइंडर बट 9 का डिवाइजर तो बड़ा हो गया तो मैं 9 में दोबारा 7 से डिवाइड कर दूँगा रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा तो 2 मेरे को की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा ठीक है जी तो जो मैंने वैसे चेक करा मैनुअली जो मैं 100 ਨੂੰ 7 से डिवाइड करता ਤਾਂ भी मेरे को रिमाइंडर कितना आऊगा 2 आऊगा तुम मैनुअली भी चेक कर सकते हो 7 का 28 रिमाइंडर कितना आ गया 2 ठीक है जी तो मैं सिंपल की करूँगा मैं 100 का स्क्वायर ना करके मैं रिमाइंडर का स्क्वायर करूँगा 9 आ जाऊगा 9 ਨੂੰ दोबारा 7 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा मेरे को आंसर आ जी 2 तो मैं सेम इस क्वेश्चन के भी यही चीज़ करनी हैगी बट ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा डिफरेंट है देखो किमें जे मैं स्क्वायर करता कितना आ जाऊगा 100 आ गया जी मेरे को हुण 100 है जी मेरे को तो उरे मेरे को कितना आ रहा 4 आ रहा है ठीक है जी उरे मेरे को रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 100 तो जे रिमाइंडर मैंने 4 लैके आना है तो मेरा डिवाइजर की होगा 96 होगा जी मेरा डिवाइजर तो ही मेरे को रिमाइंडर 4 बचूगा मैंने तो डिवाइजर पता करना है हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ डी आर पॉसिबल हुण आपां चीज़ पता करनी है तो मेरा डिवाइजर 96 हो सकता है ठीक है जी बट अगे देखो जी की कंडीशंस ने मेरा डिवाइजर मैं तो बनाऊँगा फैक्टर 1 ते 1 भी हो सकता है 96 भी हो सकता है मेरा डिवाइजर 2 भी हो सकता है 48 भी हो सकता है मेरा डिवाइजर 3 भी हो सकता है 32 भी हो सकता है मेरा डिवाइजर 4 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है
मेरा डिवाइजर 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, पूरे कितना आ जाऊगा 16 आ जाऊगा। 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, पूरे कितना आ जाऊगा 12 आ जाऊगा। तो देखो जी हुण इस चीज़ को समझांगे आपां ध्यान नाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी ये। मेरे को देखो मैं की कीता n एक नंबर सीगा, d मेरे को डिवाइजर सी, मेरे को रिमाइंडर 10 आ गया। जे मैं n का स्क्वायर कर दांगा तो मेरे को रिमाइंडर का स्क्वायर आ जाऊगा 100 आ जाऊगा। तो मेरे को डिवाइजर की हो सकता है, डिवाइजर तो 96 ही आऊगा मेरे को। ठीक है जी, बट मैं चेक करना है जी मेरे को होर कितनी वैल्यूज पॉसिबल ने डिवाइजर दी। हुण देखो जी इस चीज़ को किवें समझांगे। देखो मेरे को एक नंबर है जी n स्क्वायर, मैं हुण तुहानूं इस चीज़ को समझा रहा भी आपां इहनूं किवें देखांगे भी किन्ने डिवाइजर दी वैल्यूज पॉसिबल ने। बहुत ध्यान नाल समझो इस चीज़ को, पहलां आपां ये चीज़ कर चुके हैं, वही चीज़ अपने काम आऊगी, बेसिक काम होगा बिल्कुल। हुण जे एक n स्क्वायर एक नंबर है, d मेरे को डिवाइजर है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैं तुहानूं कहता जिहड़ा मेरे को डिवाइजर कितना आ गया 96 है, 96 है, क्योंकि उदों मैं निकाल चुकिया सीगा। ठीक है जी, तो हुण देखो हुण जे मैं कहदा कि n स्क्वायर ही नंबर है तो डिवाइजर 48 है, डिवाइजर मेरा कितना है 48। तो कि मेरे कोले तो मैं रिमाइंडर चेक करना कितना होगा, मैं 4 का 4 ही ले आऊँगा नीचे, क्योंकि 4 तो मेरा 48 तो छोटा है, तो 48 की वैल्यू पॉसिबल है। तो जे मैं कहता भी कि n स्क्वायर नंबर है 24, सॉरी मैं चेक करना 32 ते 32 मेरे को एक नंबर है कि मेरे को हुण रिमाइंडर कितना होगा, मैं हुण भी कहूँगा रिमाइंडर 4 आऊगा। जे मैं कहना कि मैं n स्क्वायर एक नंबर है उन्होंने मैं डिवाइड कर रहा 24 ते जिहड़ा कि 96 का फैक्टर है, तो हुण भी रिमाइंडर 4 आऊगा। जे मैं कहदा कि मैं n स्क्वायर नूं 24 ते सॉरी 16 ते डिवाइड कर रहे हैं तां भी रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे को 4 आऊगा ही, क्योंकि 4 भी ये तो की है 16 तो लैसर है, छोटा है। हुण जे मैं कहदा कि मेरे को n स्क्वायर नंबर है तो मैं रिमाइंडर नूं डिवाइड कर रहा 12 ते, तो मेरे को रिमाइंडर हुण भी 4 आऊगा, क्योंकि 12 भी इहदा की है 96 का फैक्टर है। ठीक है जी, जे मैं कहदा कि मेरे को n स्क्वायर एक नंबर है तो जे मेरे को डिवाइजर कितना है 8 है, तो भी रिमाइंडर 4 आऊ, 4 छोटा है तो आ सकता है। बट उरे चेक करो, जे मैं डिवाइजर नूं 8 मनदा, मान लो जे डिवाइजर 8 आ गया तो मेरा उरे भी डिवाइजर 8 आ गया, उरे भी डिवाइजर 8 होगा, बट इत्थे मेरे को जिहड़ा रिमाइंडर कितना है 10 है, तो रिमाइंडर उरे 10 बड़ा डिवाइजर तो हो नहीं सकता, तो इस करके मेरे को डिवाइजर 8 नहीं आ सकता। जिहड़ा डिवाइजर 8 आपां देखिया ये मेरा गलत हो जाऊगा, तो मैं सिर्फ 12 तक ही लै सकदा। मतलब कि मैं जिहड़ा भी डिवाइजर उरे लाऊंगा वो मेरे को 96 भी पॉसिबल है डिवाइजर, 48 भी पॉसिबल है, 32 भी पॉसिबल है, क्योंकि मेरा उन्हां नाल रिमाइंडर 4 ही आ रहा सारिਆਂ नाल। 24 पॉसिबल है, 16 पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है। 8 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जे मैं डिवाइजर नूं उरे 8 लाऊंगा तो मेरे को ऊपर भी 8 आऊगा, डिवाइजर तो सेम ही सीगा, बट उरे रिमाइंडर 10 हो जाऊगा, जिहड़ा कि पॉसिबल नहीं हैगा। ठीक है, अपन क्वेश्चन गिवन है भी रिमाइंडर 10 आना चाहिए, जे डिवाइजर 8 आऊगा तो रिमाइंडर तो 10 इस तो बड़ा हो गया, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इस तरीके अपन क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस दे नाल दे काफ़ी सारे क्वेश्चन ने, तो होर देखांगे जी आपां। बस तुसीं उरों एक चीज़ आपां की सीखी हैगी इस क्वेश्चन दे विचों, इस क्वेश्चन 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ कि ਜਿਹੜਾ भी ऑपरेशन उरे हो रहा है, मतलब जो नंबर चेंज होगा, जे उरे स्क्वायर हो रहा तो अपने रिमाइंडर का स्क्वायर करना, जो उरे क्यूब हो रहा तो अपन रिमाइंडर का क्यूब करना है, सेम प्रोसैस करना है अपने। ठीक है, अगे देखेंगे जी आप क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी सारे क्वेश्चन ने जी इस दे नाल दे, तो आप करांगे। वैन ए नंबर इज डिवाइड बाय 20, एक नंबर है जी उन्होंने आप 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। इफ n स्क्वायर, जे आप n स्क्वायर कर दिए इज डिवाइड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना होगा। देखो जी n का स्क्वायर करता, उरे की का स्क्वायर हो जाऊगा 3 का, तो 9 का आई गया मेरे को। तो जे मेरे को उरे नंबर की है 20 हुंदा, मान लो उरे 4 ना हो गए 20 हुंदा, तो मेरे को रिमाइंडर कितना आना सीगा 9 आना सीगा। तो हुण जे मेरे को कितना 4 हैगा, 20 की जगह रिमाइंडर कितना है, सॉरी डिवाइजर कितना 4 है, तो हुण रिमाइंडर कितना आऊगा 9 आना सीगा, मैनू 4 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है जी, तो एक्चुअल रिमाइंडर मेरे को कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा क्वेश्चन में, जे मेरे को n एक नंबर है, मैं 20 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 3 आ रहा है, जो नंबर n स्क्वायर हो जाऊगा, जो उन्होंने डिवाइड 4 से करूँगा तो मेरे को रिमाइंडर कितना आऊगा। तो 4 की है फैक्टर है 20 का। ठीक है जी, तो जे नंबर n सीगा तो रिमाइंडर 3 आ रहा सीगा, जे मैं उरे कहदा कि मैंने जी n स्क्वायर 20 से ही डिवाइड करना है,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ n ਸਕੁਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 9 ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 9, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਰ 9 4 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ। ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ PDF ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PPT 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Question 21. When a number is divided by 20, leaves remainder 7. If n square is divided by 3, leaves remainder, ਤਾਂ ਆਪਾਂ remainder ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਔਰ 20 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਪਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਂਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ, ਵੈਨ ਏ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 35 ਇਟ ਲੀਵਸ ਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 7। ਇਫ n ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਲੀਵਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਰੇ n ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 7 ਦਾ 49 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 49 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23। A number is divided by 40, it leaves remainder 3। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਫ n ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 5 is divided by 8 leaves remainder, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ n ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 5 ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 14 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 6 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ C ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਲੱਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਬਟੇਨਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 6 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 23 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24। ਇਫ 5 ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਇੰਟੀਜਰ n, ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਜੀ n, ਇਹਨੂੰ 5 ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਜ਼ 2, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ। ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਫ 7n ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 7n ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 5 ਤੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਰੇ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, 14 ਆ ਜਾਊਗਾ। 14 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25। ਹੁਣ ਇਹ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, the remainder on dividing given integer a and b by 40 are 3 and 7 respectively। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, the remainder on dividing given integers, ਦੋ ਇੰਟੀਜਰ ਨੇ a ਤੇ b by 40, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ 3 ਆ, ਇੱਕ ਤੇ 7 ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ। what is the remainder when a square plus b square is divided by 8, ਤਾਂ ਨਿਊ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਣੂਗਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਇਹ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 + 49
58 ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 58 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 40 ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 8 ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 856, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। 2 ਆंसर है जी अपने कोल ऑप्शन बी। ठीक है जी, जो ऑपरेशन आप उरे लगाया सेम ऑपरेशन उरे कितना है 58 है, 58 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 40 ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆਇਆ 40 ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 58 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 40 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 18 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26। The remainder on dividing given integers a and b by 10 are 7 and 2। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 7 ਆ ਰਿਹਾ, b ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਰਿਹਾ। What is the remainder when a square plus b square is divided by 5। देखो 5 ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਸੇਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 49 plus 4 53 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 53 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਤੇ 28। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 27 28 29 30 31 32 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ on dividing given integers। हाँ जी की क्वेश्चन है अपने को। क्वेश्चन 27 है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर a एंड b बाय 10। a ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, b ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇੱਕ ਤੇ 7 ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਰੇ 45 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ। ਹਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ 27 ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ 0 ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28। Question number 28 the remainder on dividing given integer a and b by 10 are 8 and 2 respectively। a ਤੇ b ਦੋ ਇੰਟੀਜਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਆਇਆ, ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆਇਆ। what is the remainder when a square minus b square is divided by 5। ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 square minus 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 64 minus 4 60 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 60 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 29 ਤੇ 30। ਇਹ 29 ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 30। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਔਨ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਗਿਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ a and b by 12 are 7 1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 12 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 7, b ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 12 ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ 7 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 49 ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 48 ਆ ਗਿਆ। 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0। ਉਰੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ 29 ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, 28 ਤੇ ਵੀ 27 ਤੇ ਵੀ। remainder on dividing given integer a and b by 30 are 14 ratio 1 14 and 1 respectively। what is the remainder when a square minus b square is divided by 6। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਉਰੇ।
ਤਾਂ 14 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ 156, ਸੌਰੀ 196, 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 195। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, 6 ਤੀ 18, 15, 6 दूनी 12, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ जाऊगा 3। इस तो बाद आप दोबारा आवांगे इस क्वेश्चन पे। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है जी अपने को, द रिमाइंडर ऑन गिवन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर a एंड b बाय 40 आर 3 एंड 1। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 20। तो देखो जी सेम ऑपरेशन लगावांगे, उरे आ जाऊगा 9 का स्क्वायर माइनस 1, 8 आ गया, तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया 8। हुण देखो जी उरे की दिक्कत हो रही है आपां नूं, हजे आपां इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे, आंसर नहीं आया तो आपां जिहड़ा क्वेश्चन नैक्सट देखते हैं जी आपां, 31 सीगा, 32 है। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, चलो आप इत्थों देखते हैं, पहले आप 31 तक आप एनालिसिस पूरा कर लिए आप अपना। देखो जी की हो रहा क्वेश्चन के विच, ਆਪਾਂ ਨੂੰ नंबरस बारे कोई जानकारी नहीं है कि ए बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। देखो मैं इस तुहानूं एग्जाम्पल नाल दसूंगा जी इस चीज़ को। मैं उरे देखो की दिख रहा है, एक नंबर है जी ए, मैं ए नूं 40 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे को 3 आ गया। इन्नी गल हो गई जी। तो मेरे को ए की की पॉसिबिलिटीज़ ने, हो सकता मेरा ए कितना हो 43 हो जी, बी कितना हो मेरा 41 हो, क्योंकि जो मैं बी नूं 40 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, तब मेरा बी 41 हो सकता है। एक टाइम लिए ये चीज़ मैं देख ली भी 41। हुण देखो उरे मेरे को की आ रहा, ए ग्रेटर दैन बी आ गए एक तरह का, बट अपन क्वेश्चन तो ये चीज़ गिवन नहीं है। हो सकता है मेरे को नंबर ए है ये 43 ना हो के 80 की हो जाए 3 हो जाए, 83 हो जाए, क्योंकि जो 83 होगा देखो ए की वैल्यू कितनी है 83 है, जो 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। हो सकता है 83 हो गए, तो मैंने ये बारे कोई पर्टिकुलर नॉलेज नहीं हैगी कि मेरा ए कितना या बी कितना, बी मेरा 81 भी हो सकता है, हो सकता है ए 43 हो तो बी 81 हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो मतलब मेरे को कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे को ए बड़ा या बी बड़ा, मैंने क्वेश्चन च गिवन नहीं है ये चीज़। बट जो मैं ये क्वेश्चन किया मैंने ए नूं बड़ा मन के किया है, ठीक है, जे मैंने ए नूं बड़ा मन के किया है तो मेरे को इधरली साइड से 8 आया अपने को, जे बी बड़ा होंदा तो मेरे को -8 आना सीगा, क्योंकि जे इत्थे ऑपरेशन लग रहा है तो जे उरे नैगेटिव नंबर आ जाता, जे मान लो बी बड़ा होंदा एक टाइम वास्ते, तो जे आप छोटे नंबर का स्क्वायर कर रहे फिर वो बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की आना सी अपने को माइनस च आना सीगा, तो -8 आना सी रिमाइंडर की। समझ गए जी मेरी गल। बट उरे अपन को कुछ भी पता नहीं है भी की हो रहा है। देखो मैं एक एग्जाम्पल नाल होर तुहानूं दसदा, जे मैं 43 का स्क्वायर करता, देखो जी मैं एक एग्जाम्पल नाल अपना कोल की सी, जे मान लो जो मैं 43 नूं ए मान लैंदा, एक बार आप सपोज करते हैं ताकि कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए बिल्कुल। जे 40 मैं 3 का स्क्वायर करदा, मान लो ए 43 है तो बी कितना 41 है, मैं एक टाइम लिए मन के चलदा कि ए ग्रेटर दैन बी है, जो कंडीशन आप उरे लै चुके हैं। देखो तो अपने को कितना आंसर आऊगा, जो 40 मैं 3 के स्क्वायर के विचों 41 का स्क्वायर माइनस करदा, तो ये चीज़ मैं अपने फोन पर कर रहा जी, तो मेरे को 168 आ जाऊगा। तो जब मैं 168 मेरे को आ गया, तो जब मैं 20 से डिवाइड करदा तो मेरे को रिमाइंडर आ जाऊगा 8 आ जाऊगा। ठीक है जी, इन्नी चीज़ तो मेरे को होगी क्लीयर, तो रिमाइंडर 8 आऊगा, क्योंकि जब मैं ए नूं बड़ा मन के सपोज करदा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो रिमाइंडर 8 आऊगा। बट जे बी बड़ा होगा, मान लो एक टाइम वास्ते हुण बी बड़ा हो गया, बी नूं मैं की सपोज कर लेना 81, ए नूं मैं दोबारा वही सपोज कर रहा 41, तो हुण जे मैं बी 81 है तो ए कितना मेरा 43 है, तो जे मैं 81 के स्क्वायर के विचों जिहड़ा कितना हुंदा मेरे को 6, 81 का स्क्वायर है 6561, तो 43 का स्क्वायर है मेरे को 43 × 43 81849, 43 का स्क्वायर। तो जे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करदा, मतलब कि मैं 1849 के विचों, मतलब उरे मैं उन्हें मानता कि बी मेरे को बड़ा आ रहा है, तो जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा तो जब मैं 1849 के विचों 6561 करदा तो 4712 आ जाऊगा, इन्ना डिफरेंस आ जाऊगा 4712, 4712।
ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ मैं 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੌਰੀ 20 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 12 ਆਊਗਾ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ। ठीक है जी, तो रिमाइंडर 12 आ रहा है। तो हुण मतलब कि 8 मेरी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं हैगी, मतलब मेरा सही रिमाइंडर नहीं हैगा क्योंकि मैनू ए स्केयर ते बी स्केयर बारे नॉलेज नहीं हैगी। तो देखो जे तो सिंपल जी गल है, जे तो मैं ए स्क्वेयर बड़ा करता जे तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर तो बड़ा तो रिमाइंडर 8 आ सकता है जी, ये भी चांस ने। बट जे नहीं पता तो मैनू की मैं की करूँगा, तो या फिर 8 आऊगा रिमाइंडर या फिर -8 रिमाइंडर आऊगा मेरे को। ठीक है जी, तो जो भी अपने को नैगेटिव वाला कॉन्सैप्ट आता है उरे तो मैंने 2 रिमाइंडर लिखने ने 8 ते -8, क्योंकि जो बी स्क्वेयर बड़ा होगा तो -8 आ जाऊगा, जो ए स्क्वेयर बड़ा होगा तो +8 आ जाऊगा। तो मैंने 2 रिमाइंडर लिखने ने, तो मैंने 20 मैं ऐड कर दूँ क्योंकि नैगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता अपने को। एक रिमाइंडर जो 8 आ गया तो दूसरा -8 आ गया, तो मैंने 20 ऐड करने पैणगे तो कितना आ जाऊगा 12 आ जाऊगा। ये चीज़ आप की जो अपने नैगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सैप्ट पढ़िया सी स्टार्टिंग के उसनों ध्यान नाल देखियो कि जो रिमाइंडर नैगेटिव आ गया जो डिवाइजर मैं ऐड करूँगा तो मेरे को एक्चुअल रिमाइंडर आ जाऊगा 12। तो मेरे को रिमाइंडर 8 भी हो सकता है तो 12 भी हो सकता है, अपने एग्जाम्पल नाल भी चैक कर लिया। तो इसका आंसर आऊगा 8 और 12, ऑप्शन सी। ठीक है जी, या तो रिमाइंडर 8 आऊगा या रिमाइंडर 12 आऊगा। तो हम जो आप पिछले क्वेश्चन किए ने उत्थे की हो गया, देखो जी अपने को जो आप पिछले क्वेश्चन कर चुके वो आप एक बार दोबारा आप बैक जाके देख देंगे। 26 आप कर लिया, 27 देखो जी उरे की होया सी अपने को इत्थे क्वेश्चन दे विच इत्थे भी सेम चीज़ अप्लाई करनी सी आपां ने। 27 देखो जी इत्थे भी आप सेम चीज़ अप्लाई करनी सी, बट उरे रिमाइंडर ही 0 आ गया सी, चाहे 0 आवे चाहे -0 आवे इक्को ही चीज़ हुंदी है जी। तां करके इत्थे आपां कुछ कर नहीं सके है। तो ऑप्शन सी मेरी उरे सही आंसर सी। ठीक है, 0 ही आंसर आना सीगा। 28 दे विच की सी मेरे कोले उरे भी मेरे को आंसर 0 आया सीगा, तो मैं कुछ इत्थे भी नहीं कर सकिया, तो ये भी आंसर ठीक है। तो 29 च कितना आया सीगा उरे भी 0 आया सीगा, ये भी ठीक सीगा। ते 30 दे विच की कितना आंसर आया सीगा रिमाइंडर 3 आया सीगा। तो जे रिमाइंडर जे 3 आया तो मैं होर की मेरे को रिमाइंडर आ जांदा। देखो जी मेरे को उरे 195 में 6 से डिवाइड किया था रिमाइंडर 3 आ गया, या फिर मेरे को की आंदा -3 आंदा। जो मैं -6 दे विच मैं दोबारा -3 च मैं दोबारा 6 भी ऐड कर दूंगा तां भी रिमाइंडर कितना कितना आऊगा 3 आऊगा। मतलब कि रिमाइंडर तो मेरे को 3 ही आऊगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो। तां करके उरे ऑप्शन एवें दियां सी, क्योंकि जे मैं 195 डिवाइड किया 6 ते मान लो मेरे को ए बड़ा सीगा तो रिमाइंडर उरे 3 आऊगा। जे ए स्क्वायर -बी स्क्वायर दे विच बी बड़ा होगा तो रिमाइंडर माइनस कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। बट -3 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो मैंने ये डिवाइजर ऐड करूँगा तो 3 आ जाऊगा। तो भी रिमाइंडर 3 आ रहा, मतलब कि उरे भी रिमाइंडर इक्वल आई सी अपने को। तो मैं उरे कुछ भी आप चीज़ अप्लाई नहीं की, करके आप आंसर का होल्ड करता सीगा कॉन्सैप्ट नूं समझण लई। अगे किहड़ा क्वेश्चन सीगा 31 आप उरे कर लिया सीगा। 32 देखो जी इहनूं आपां किवें करांगे। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर a and b by 10 are 7 and 5 respectively. What is the remainder when a minus b divide by 2? जे मैं a ਨੂੰ 10 ਤੇ डिवाइड करदा ਤਾਂ रिमाइंडर 7 आ रहा, b ਨੂੰ 10 ਤੇ डिवाइड करदा ਤਾਂ रिमाइंडर 5 आ रहा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं a minus b ਨੂੰ डिवाइड करूँगा 2 ਤੇ ਤਾਂ रिमाइंडर कितना आऊगा। सेम ऑपरेशन लगे जी a minus b, इत्थे भी ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ a minus b करांगे तो उरे 2 आ जाऊगा। ठीक है जी, जो मैं 2 ਨੂੰ 2 ਤੇ डिवाइड करदा तो रिमाइंडर 0 आऊगा। ठीक है जी, बट उरे की प्रॉब्लम है, मतलब आंसर तो 0 ही है। चाहे मैं a minus b करदा जे रिमाइंडर 2 आया तो -2 भी आ सकता है। ठीक है जी, चाहे मैं 2 ਨੂੰ 2 ਤੇ डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आऊगा, जो 2 ਨੂੰ -2 ਤੇ करा तो रिमाइंडर तो भी 0 आऊगा। मतलब कि उरे रिमाइंडर 0 ही आऊगा। ऑप्शन सी मेरा आंसर है। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 33 ਤੇ 34, ये भी 2 आप क्वेश्चन कर लिए जी। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर a and b by 40, जे जो आप दोनों 40 से डिवाइड करते हैं तो आंसर की आ रहा है 8 ਤੇ -3 सॉरी 8 ਤੇ 3 रिमाइंडर आ रहे हैं। जो आप a minus b ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a minus b डिवाइड बाय 20, तो रिमाइंडर कितना होगा। देखो जो आप सेम ऑपरेशन लगे a minus b इत्थे कर देंगे उरे रिमाइंडर 5 आ जाऊगा या फिर -5 आऊगा जे b बड़ा होया a तो हुण की आ जाऊगा अपने कोले जे आप 20 ऐड कर दिए तो रिमाइंडर कितना आ जाऊ 15 आ जाऊगा।
ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਰੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੀ ਹੈ 15 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਟ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ 5 ਔਰ 15 ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਆਨਸਰ 5 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਾਂਟ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਹੈ ਜੀ, the remainder on dividing a given integer a and b by 9 and 6 are 9 ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਤੇ b ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਤੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ। what is the remainder when a minus b is divided by 2? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ 2 ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕਾਂਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨ। ਜੇ ਉਰੇ ਕੀ 3 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਊਗਾ ਕਾਂਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35, the remainder on dividing given integer a and b by 8 are respectively 5 and 7। ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ a ਤੇ b, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਤੇ 7 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। what is the remainder when ab is divided by 8? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ab ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 35 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ 35 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 3। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36, ਇਫ ਅ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 129, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ 129 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 27, ਇਫ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 86 then what will be the remainder? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਊਗੀ 86 ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4n ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 43 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 86 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 129 ਤੇ 86 ਕਿਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ, 43 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ n, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 129 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 27 ਆਉਂਦਾ। ਜੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 4n ਨੂੰ 86 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 43 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 43 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ n ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ n ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਲਿਖੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। 2 + 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 11 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰਾ 11 ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 11 ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰਾ 8 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਏ 2 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 5 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹਜੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ n ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ।
एक नंबर ਉਹੀ ਨੰਬਰ n ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ 6 ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ n ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 5 ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 5 ਆਊਗਾ ਬਟ 5 ਇਹ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 6 ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ n ਨੂੰ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀਆਂ 2 ਤੇ 5 ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ n ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਨੰਬਰ n ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 25 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 9 ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 14 ਆ ਸਕਦਾ 19 ਆ ਸਕਦਾ 24 ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 86 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 27 ਚੋਂ 108 ਜਦੋਂ ਮੈਂ 108 ਨੂੰ 40 ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ 86 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 12 8 26 26 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4n ਨੂੰ 43 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 26 ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 86 ਸੌਰੀ ਉਰੇ 22 ਆਊਗਾ ਜੀ 22 ਆਊਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 4n ਨੂੰ 43 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 4n ਨੂੰ 86 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ 22 ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ 22 'ਚ 43 ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 65 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 22 ਤੇ 65 ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 if a number is divided by 21 if ਜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ 21 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਆ ਰਿਹਾ if the thrice of the square of this number is divided by same divisor then find the remainder ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ thrice of square of this number ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ thrice of this number thrice of square of this number is divided by same divisor ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਗਾ ਜੀ ਉਰੇ ਤਾਂ 13 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 169 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਮੈਂ 3 ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਤਾਂ 169 into 3 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 21 ਮੈਂ 21 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 21 ਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 168 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਉਰੇ 1 into ਮੈਂ 3 ਕਰੂੰਗਾ कैंसल नहीं करना मतलब कि रिमाइंडर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा मैं 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ 21 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨੂੰ 21 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ 1/7 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ 1 ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 7 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 1 ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ 21 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ये चीज़ आप ध्यान रखनी है तो आंसर आ गया जी ऑप्शन डी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 38 when a positive integer is divided by d the remainder is 15 when 10 times of the same number is divided by d the remainder is 6 the least possible value of d is देखो जी एक नंबर है इंटीजर है n ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ when the same number is divided by d the remainder is 6 ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 6 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਸਟ ਪੋਸੀਬਲ
सॉरी उरे है 10 टाइम्स, जो आप 10 टाइम्स किया इस नंबर का डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 आ गया। तो कहना लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी कितनी है। तो देखो जे आप 10 टाइम्स किया है तो यदा भी 10 टाइम्स अपन करना पैना सीगा, तो कितना आना सीगा 150। हुण 150 नूं आपां ने की करना, देखो बहुत वधिया क्वेश्चन है। देखो जी की कह रहे हुण 150 अपने को आ गया जो, क्योंकि इधर 10 टाइम्स होया इधर भी होना सी 10 टाइम्स का। हुण 150 आ गया अपने को। जे आपां इहनूं जे आपां रिमाइंडर 6 लैके आना है तो मेरे को डी कितना की होवे 144 होगा डी, या फिर ਇਹਦਾ की होगा फैक्टर होगा। ठीक है जी, या तो मेरे को डी की होगा 144 होगा, क्योंकि जे मैं 150 नूं देखो उरे की है, जे मैं क्वेश्चन देख रहा जे मेरे को डी मान लो 144 है, जे मैं एक नंबर नूं 144 ते डिवाइड करा तो भी रिमाइंडर 15 आ रहा है। जे मैं 10 टाइम्स 144 ते डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना होगा, ਇਹਦਾ भी मैं 10 टाइम्स करूँगा 150 आ जाऊगा, 144 तो डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब मेरा 144 आंसर हो सकता है। या फिर ਇਹਦਾ की होगा कोई मेरे को की होगा ਇਹਦਾ फैक्टर होगा 144 का, तो ਇਹਦਾ फैक्टर की बनते हैं 1 बनता है 72 बनता है 2 आ सकता है 70 सॉरी 1 के नाल 144 आऊगा 72 आऊगा। जे 3 होगा तो आ जाऊ मेरे को 3 दे नाल आ जाऊगा 3 चौक 12 48 आ गया। जे 4 होगा तो आ जाऊगा 4 तीए 12 24 4 6 24 5 से डिवाइड होंगे, जी मैं 6 से करूँगा 6 दूनी 12 24 आ जाऊगा। 7 से नहीं होंगे 8 से डिवाइड होगा जी, जो मैं 8 से डिवाइड करदा तो ये आ जाऊगा 8 एकम 8 8 8 64। ठीक है जी 18 आ जाऊगा। तो इस तो बाद ये फैक्टर बन जाएंगे, मैं बाहरले साइड लिख रहा जो मैं 9 से करदा तो ये बन जाऊगा 9 एकम 9 5 54 9 से डिवाइड होंगे जी 5 4 9 तो 16 आ जाऊगा। 10 से डिवाइड होंगे नहीं, जो मैं 12 से करदा डिवाइड इनू तो 12 आ जाऊगा। मतलब आ मेरे को सारे की निकले फैक्टर निकले। तो 144 भी हो सकता जायज़ हो, कोई फैक्टर होगा। हुण आप फैक्टर देखो इसका की हो सकता है, जे आप 144 भी इसका आंसर हो सकता है, बट आप देखना लीस्ट नंबर इस तो बाद आ गया 72 आ गया, इस तो बाद 48 आ गया। तो सब तो लीस्ट किहड़ा 1 है, पर 1 का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो 1 डिवाइजर हो गया, जे डिवाइजर 1 हो गया तो रिमाइंडर 15 से 6 नहीं हो सकता है। तो अपन 15 तो 6 तो बड़ा नंबर देखना पऊगा, किहड़ा आ गया जी अपने को 18 आ रहा है। तो 18 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ जी, ਇਹਦਾ सॉरी 18 तो पहले एक 16 भी आ रहा है अपने को, तो 16 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ लीस्ट डिवाइजर आऊगा ऑप्शन बी। क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ देखना है जी, ਜਿਹੜਾ मेरा डिवाइजर होगा वो मेरा 15 ਦੇ 6 तो बड़ा ही होना चाहिए है। तो ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ आ जाऊगा 16 ਇਹਦਾ ਕੀ आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा ऑप्शन बी। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन इस तरह पूछ ले भी कितनियां वैल्यूज पॉसिबल ने डिवाइजर ਦੀਆਂ, तो 16 तो उपर ये जिन्ने भी फैक्टर ने वो सारी वैल्यूज पॉसिबल ने 16 18 24 36 48 72 144। ठीक है, ये सारिया वैल्यूज ये पॉसिबल ने। ये क्वेश्चन भी अगे अपन पूछ सकता है। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 39। इफ 7 डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर n then remainder is 2, which of the following number gives a remainder of 0 when divided by 7। कहना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ रिमाइंडर 0 ਦੇਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਤੇ डिवाइड करांगे। देखो जी उरे 2 है, ਜਿਹੜਾ ऑपरेशन आप इधर लगावांगे वही सेम ऑपरेशन इधर लगूगा। जे आप n+2 लैके आवांगे तो इधर कितना आ जाऊगा, इधर भी 2 ऐड हो गए 4 आ जाऊगा, तो रिमाइंडर 4 आऊगा। ये तो गलत हो गया जी। तो उरे 7 बन जाए अपने को, क्योंकि अपन रिमाइंडर चाहिए की है 0 चाहिए है। तो जो मैं ये 5 ऐड करा तो ही मेरे को वैल्यू 7 होगी, तो 7 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आऊगा, मतलब कि n+5 आ जाऊगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 40। When two numbers separately divide by 33 leaves remainder 21 and 28 respectively,
दो नंबर ने जी ए ते बी, जे मैं 33 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 21 ਤੇ 28 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਟੂ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 33 ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ 33 ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ 49 ਆ ਜਾਊਗਾ। 49 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 33 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 16। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ 41। ਕੁਐਸਚਨ 41 ਹੈ, if a number n is divided by a divisor d, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ n ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, of two digit number, ਜਿਹੜਾ d ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2 ਅੰਕ ਨੇ, 2 digit number ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। gives a remainder 68, ਤਾਂ 68 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। if 5n, ਜੇ ਆਪਾਂ 5n ਕਰ ਦਈਏ divided by d ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਰੇ 5 ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਤਾਂ 5 ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 68 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 340 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 340 ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਬਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8 ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 332 ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਡੀ 332 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 332 ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ 332 ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ 332 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 116 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਰੀ 166 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 8 32, 83 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 83 ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ 83 ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ 332 ਦੇ ਜਿਹਦੇ 2 ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ 83 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42। when a number is divided by a certain divisor the remainder is 46, if another number is divided by same divisor it leaves remainder 31। इन्हीं चीज़ आप लिख लिए, एक नंबर है जो अपन 46 ਤੇ सॉरी किसी ਆਪਾਂ नंबर ਤੇ डिवाइड करते हैं डिवाइजर ਤੇ करते हैं ਆਪਾਂ, एक नंबर है जी n1, जो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਤੇ डिवाइड करते हैं ਤਾਂ रिमाइंडर कितना आ रहा 46 आ रहा। एक होर नंबर है जी n2, जो अपन d ਤੇ डिवाइड कर दिए तो सेम डिवाइजर ਨਾਲ ਤਾਂ रिमाइंडर 31 आ रहा। इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर, जिन्हों का सम n1 प्लस n2 डिवाइड हो जाए सेम डिवाइजर नाल तो रिमाइंडर कितना आ रहा 19 आ रहा। तो कहना डिवाइजर कितना होगा। देखो जी वैसे जो आप इन्हों का सेम ऑपरेशन लगाइए तो उरे कितना आ गया 77 आ गया, बट रिमाइंडर कितना आ रहा 19 आ रहा है। तो रिमाइंडर 19 आने के लिए अपन डी कितना करना पऊगा, डी कितना करना पऊगा ताकि रिमाइंडर 19 आ जाए। 19 रिमाइंडर लिए डी कितना होगा, आप 77 19 माइनस कर दें तो डी आ जाऊ मेरे को पूरे 8 आ जाऊगा, पूरे 5 आ जाऊगा। तो डी कितना आ गया 58 आ गया। तो ऑप्शन सी की है मेरा सही आंसर है। देखो 58 भी आ सकता है या यदा कोई फैक्टर भी हो सकता है, मतलब कि 29 भी आ सकता है डी, बट गिवन ऑप्शन में जो 58 आंसर है मेरा, ठीक है जी वो सही आंसर। नैक्सट करेंगे जी आप क्वेश्चन नंबर 43। A number n when divided by a divisor d gives a remainder 52. The number 7n when divided by d gives a remainder 4. How many values of d are possible? की क्वेश्चन है देखो जी, बहुत वधिया क्वेश्चन है भी। एक नंबर n है जी, जो उसनों ਆਪਾਂ d ਤੇ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा 52 आ रहा है। जे आप 7n ਨੂੰ d ਤੇ डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो कहना किन्नियां वैल्यूज डी दी पॉसीबल ने। देखो जो 7n किया तो उरे भी तो 7n होना सीगा, मतलब कि रिमाइंडर को 7 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करनी सी जी ਆਪਾਂ ने। तो यह बन जाऊगा 350 14 364, तो मेरे को रिमाइंडर 364 आना सीगा, बट रिमाइंडर कितना आएगा 4 आया। तो मतलब मेरा डी की हो सकता 364 या फिर इसका फैक्टर और इट्स फैक्टर। तो 364 के फैक्टर की बनते हैं 1, 364 2 ते करांगे
182 आई थिंक 182 बिल्कुल ठीक है जी। जे 3 ते डिवाइड करते हैं 3 ते डिवाइड होंदा नहीं, 4 ते डिवाइड हो जाऊगा जी। 4 ते करांगे तो आ जाऊगा 4 9 36, 4 1 4 91। 5 ते डिवाइड हो नहीं सकता, 6 ते नहीं होना है, 7 ते डिवाइड चेक करांगे आप, 7 ते होगा डिवाइड है, 7 5 35, 7 दूनी 14, 52 आ गया। 8 ਤੇ डिवाइड करांगे तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਡੀ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸੀਗਾ 52 ਸੀਗਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 52 ਤੋਂ ਕੀ ਆਵੇ, ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 91 ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 182 ਬੜਾ ਹੈਗਾ, 364 ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 52 ਮੇਰੇ ਕੋਲ डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि जो 52 डिवाइजर हो गया तो मेरे को रिमाइंडर उरे 52 नहीं आना, क्योंकि जो मेरा डिवाइजर होंगे वो रिमाइंडर तो बड़ा होंगे हमेशा। तो 52 हो नहीं सकता, तो इसका आंसर कितना आ जाऊगा 3। ऑप्शन सारिया गलत ने जी, कितना आंसर आऊगा इसका 3 आंसर आ जाऊगा। तो एक बहुत वधिया क्वेश्चन है जी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 की है जी, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय अ सर्टन डिवाइजर द रिमाइंडर इज 20। जी कहता किसी नंबर को आप किसी डिवाइजर से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। एक होर नंबर है जी, इफ अनदर नंबर पूरे n1 कर लिए, उरे आप कर लिए n2 इज डिवाइड बाय सेम डिवाइजर इट लीव्स रिमाइंडर 5 इफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ n1 n2 इज डिवाइड बाय द सेम डिवाइजर इट विल गिव्स रिमाइंडर 3। तो फाइंड द डिवाइजर। तो आसान क्वेश्चन है जी, जे उरे मल्टीप्लाई हुए तो इतने भी मल्टीप्लाई करेंगे जी, उरे कितना आ जाऊगा 100। 100 रिमाइंडर आना सी जो मेरे को डिवाइजर डी होंगे, बट कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आया, मतलब कि डिवाइजर कितना होगा 97 होगा, या फिर कोई फैक्टर होगा। 97 का कोई फैक्टर है नहीं गा जी, तो ऑप्शन ए की है मेरा सही आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय सर्टेन डिवाइजर रिमाइंडर इज 5 इफ अनदर नंबर n2 is divided by same divisor remainder is 7 if product of both the number is divided by same divisor the remainder is 6। फाइंड डिवाइजर। तो डी पता करना है जी, आसान है जी। 7 × 5 35, 35 में 6 ते 6 किमें आऊगा जी, जो डिवाइजर कितना होगा 29 होगा, या कोई फैक्टर होगा 29 की है जी प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ए ही की आ जाऊगा सही आंसर, फैक्टर का कोई हो नहीं सकता। नेक्स्ट है जी 46। व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय certain divisor the remainder is 20 if another number is divided by same divisor then it leaves remainder 5। ठीक है जी। if the product of both the number is divided by the same divisor it gives remainder 8 the largest divisor। एक नंबर है जी n1 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 20 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ n2 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ d ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ n1 × n2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ 100 ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ d ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ 92 ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਰੇ 1 ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 92, ਉਰੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 46। जे डी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा फैक्टर कितना, जो 3 आ गया उरे कितना आ जाऊगा इतने आ जाऊगा, सॉरी ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे जी 3 से, तो 4 से डिवाइड होगा, जो 4 से आ गया तो कितना आ जाऊगा 23 आ जाऊगा। अगे अपन लोड नहीं चेक करनी, क्योंकि जो 5 से करांगे तो वैल्यू बहुत डाउन चली जाऊगी। जो डिवाइजर है तो अपन 20 तो की चाहिए बड़ा, अपने देखना कि जी लार्जेस्ट देखना, तो लार्जेस्ट तो 92 ही आ जाऊगा। ठीक है जी, जो लार्जेस्ट पूछूगा 92 आ जाऊगा, जो स्मॉलेस्ट पूछूगा 23 आ जाऊगा। ठीक है जी, जो नंबर ऑफ डिवाइजर पूछूगा किन्ने पॉसीबल ने, तो 92 पॉसीबल है, 46 पॉसीबल है, तो 23 पॉसीबल है, तो आंसर कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा भी 3 डिवाइजर पॉसीबल ने। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाऊगा 92। नैक्सट क्वेश्चन की है जी 47, सेम वही क्वेश्चन है जी 46 ਤੇ 47। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਮਾਲੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ कैलकुलेट, तो कितना आया सी 23 आया सीगा,
तो ऑप्शन डी की है मेरे को सही आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है जी 48, बिल्कुल सेम है जी, इच की पूछा हुआ है। देन हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ डिवाइजर आर पॉसिबल, किन्नियां डिवाइजर के वैल्यूज पॉसिबल ने। ਤਾਂ ਕੀ वैल्यू पॉसिबल सी 23 पॉसिबल सी 46 सी ਤੇ 92 सी। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ वैल्यूज पॉसिबल ने जी अपने को 3, ऑप्शन बी आ जाओ। मतलब कि इस तरीके ਨਾਲ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इस टॉपिक के बेस पे। नैक्सट जी क्वेश्चन नंबर 49। हाँ जी 49 देखांगे ਆਪਾਂ। when a number is divided by certain divisor the remainder is 10। एक नंबर है जी n1, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 10 ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ if another number is divided by the same divisor it leaves remainder 20। if the product of both the number is divided by the same divisor the remainder is 10। then how many values possible of divisor are possible, largest divisor smallest divisor ਤੇ divisor। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਾਲੈਸਟ ਕਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 200 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਰੇ 200 ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 10 ਦਾ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 190 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ 1 ਤੇ 190 2 95 3 ਤੇ डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ 4 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੇ ਹੋਊਗਾ 5 38 6 ਤੇ पॉसिबल नहीं है ये, आई थिंक नहीं कैंसल होना। 7 ਤੇ नहीं होना तो ये हो जाऊगा 19। हाँ 10 ਤੇ होगा तो कितना आ जाऊगा 19 आ जाऊगा। इस तो बाद हो जाऊगा ये 11 12 बस ठीक है जी, इतने तक लिखना है अपने, क्योंकि जो अपना डिवाइजर है ये तो कितना आ गया डाउन आ गया 20 तो ये आप स्किप कर देंगे। तो जो एक्चुअल आ गए डिवाइजर 38 आ गए 95 आ गए 190 आ गया। 190 की है लार्जेस्ट डिवाइजर है, स्मॉलेस्ट किहड़ा 38 है। तो किन्ने डिवाइजर की वैल्यूज पॉसिबल ने 1 2 3 3 वैल्यूज पॉसिबल ने। तो 3 190 ते 38 ऑप्शन सी की है अपने को सही आंसर है। अगे देखो जी नेक्स्ट, when a number a is divided by certain divisor the remainder is 10। if another number b divided by the same divisor remainder is 5। if a square plus b square of both the number is divided by the same divisor it gives remainder 1। how many values of divisor are possible, largest divisor smallest divisor। ਆਪਾਂ ਨੇ सिंपल ही करना है जी, स्क्वायर करके ਆਪਾਂ ने ऐड करना है। पूरे 100 आ जाऊगा, पूरे 25 आ जाएगा स्क्वायर 125 आ जाएगा। बट रिमाइंडर कितना 1 है तो डी की होगा 124 या फिर इसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर आप चेक कर लेने 1 आ गया 124 आ गया 124 तक ये लार्जेस्ट फैक्टर है। तो उरे 2 आ गया 62 आ गया 3 डिवाइड भी हो जाऊगा जी ये 41 आ गया, सॉरी 3 चौक 12 6 7 नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा 4 से करांगे जी, आप 4 से करांगे तो आ जाऊगा 31 आ जाऊगा। 5 तो होंगे नहीं जी ये, 6 से भी नहीं होगा जी ये डिवाइड, 6 से करांगे नहीं होगा जी, 7 से भी नहीं होंगे है, बस यही डिवाइड होगा जी। तो अपने को देखो की है अपने को 7 से भी चेक कर नहीं 7 से भी डिवाइड नहीं होता। तो 31 से 31 किया गया था लार्जेस्ट डिवाइजर की लीस्ट वैल्यू आ गई, लीस्ट वैल्यू कितनी है 31, लार्जेस्ट कितनी है 124, कितनी वैल्यूज पॉसिबल ने वैल्यूज पॉसिबल ने दिया 3। तो 3 124 तो 31 ऑप्शन ए की अपने को आंसर है। ये कितना क्वेश्चन सी अपने को ये सीगा 49, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 51। When a number a is divided by certain divisor, it gives remainder 10। if another number b divided by same divisor, it gives remainder 20। if a square plus b square of both the number is divided by the same divisor, it gives remainder 50। how many values of divisor are possible, largest divisor ਤੇ smallest divisor सारा कुछ ਆਪਾਂ ਨੇ पता करना है। तो फिर दोबारा करांगे जी, आप स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाऊगा ऐड कर देंगे कितना आ गया 500। तो डी की वैल्यू की हो सकती है 450 हो सकती है। तो 1 2 2 5 सॉरी 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 450 ਆਊਗਾ ਜੀ
2 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 225। ਜੇ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 150 ਆ ਜਾਊਗਾ। 4 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ 90 ਆ ਜਾਊਗਾ। 6 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 75 ਆ ਜਾਊਗਾ। 8 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਇਹ 9 ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 50 ਆ ਜਾਊਗਾ। 10 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 45 ਆ ਜਾਊਗਾ। और की बच गया 11 बच गया, नहीं होना 12 ते नहीं होना, 13 ते 14 ते 15 ते डिवाइड होगा जी। जे 15 ते डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाऊगा। 16 ते होना नहीं, 17 18 19 20 18 ते डिवाइड होगा जी। 18 ते डिवाइड करांगे तो कितना आ जाऊगा 18 ते करके 18 18 दूना 36, 18 दूना 36, 9 0, 18 5 90, 25 आ गया। 19 ते डिवाइड करांगे आप, नहीं होना, 20 ते भी नहीं होना, है 20 तो बाद 21 22 23 25 ते डिवाइड होगा जी। तो फिर कितना आ जाऊगा 18 आ जाऊगा। तो बस हो गया जी, ये फैक्टर सारे बन चुके जी। हम आप चैक करना भी कि फैक्टर 10 तो बड़ा है, 20 तो बड़ा है, 50 तो बड़ा है, क्योंकि 50 भी तो की है अपने को रिमाइंडर है। तो जोड़े फैक्टर 50 तो बड़े ने वो आप मार्क कर दें भी 1 2 3 4 5, यही फैक्टर है जो 50 तो बड़े ने। तो ये कितनी वैल्यूज पॉसीबल ने, 5 वैल्यूज पॉसीबल ने। सब तो लीस्ट डिवाइजर किहड़ा है 75 है, लार्जेस्ट डिवाइजर किहड़ा 450 है। तो किहड़ा आंसर आ गया जी 5 450 ते 75, 5 450 ते 75 आऊगा। पूरे मिसटेक है जी, उरे 75 करो, ऑप्शन ए आंसर है जी। ऑप्शन गलत ने जी ये, तो ये ऑप्शन ठीक बनती है। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 52। When a positive integer is divided by 5, the remainder is 2. When the same number is divided by 15, how many possible values of remainder are possible? देखो जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक नंबर है जी n, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ गया। जो आप सेम नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यूज पॉसीबल ने। आसान है जी, पहला आप कर चुके हैं, फैक्टर अप हो रहे हो, मतलब कि जो सैकेंड डिवाइजर है वो फस्ट का मल्टीपल है, वो टाइप है जी। तो कि वैल्यूज आएंगे 2 आ जाऊगी, 5 आप ऐड कर देंगे 7 आ जाऊ, फिर ऐड कर देंगे 5 12 आ जाऊ, फिर कर देंगे 17 आ जाऊ। पर 17 हो नहीं सकती क्योंकि डिवाइजर कितना 15 है, 15 तो बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो वैल्यूज पॉसीबल ने रिमाइंडर की 2 7 ते 12। तो कितनी वैल्यूज पॉसीबल ने 3 वैल्यूज, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन नंबर सी अपने को 52 सीगा। नैक्सट आप करांगे जी 53। When a positive integer is divided by 7, the remainder is 4. When the same number is divided by 28, then how many values of remainder are possible? आसान है जी, 4 आ जाऊगी, 7 पॉसीबल है क्योंकि आप सॉरी 7 नहीं 7 ऐड करना है अपने, तो 11 पॉसीबल है, फिर कर देंगे 18 पॉसीबल है, फिर ऐड करेंगे 7 25 पॉसीबल है, इस तो ऊपर 18 28 तो बड़ी आ जाऊगी। तो 4 वैल्यूज एरिया पॉसीबल ने, ऑप्शन बी आ जाऊगा। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 54। When a positive integer is divided by 5, the remainder is 3. When same number is divided by 25, which of the following could be remainder? इन्होंने विचों केड़ा रिमाइंडर हो सकता है? तो रिमाइंडर की हो सकता है 3 हो सकता है, 5 ऐड कर देंगे रिमाइंडर 8 हो सकता है, 5 ऐड कर देंगे रिमाइंडर 13 हो सकता है, 5 ऐड कर देंगे रिमाइंडर 18 हो सकता है, 23 हो सकता है। इस तो ऊपर आप जान सकते क्योंकि अपना डिवाइजर कितना 25 है। तो ये सारिया वैल्यूज रिमाइंडर दियाँ पॉसीबल ने। तो 3 8 ते 23 सारे ऑप्शन ये ने, तो आंसर क्या आ जाऊगा ऑल द अबव। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर से अपने को 54। नैक्सट करांगे जी आप 55। When a positive integer is divided by 7, remainder is 3. When the same number is divided by 28, which of the following could be remainder? तो रिमाइंडर की हो सकता है 3 हो सकता है, 7 ऐड करांगे 10 हो सकता है, 17 हो सकता है,
24 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਲ ਦਾ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਓਲਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ 55 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਥਿਊਰਮਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੋ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।